A very good morning, dear children. Today we will discuss How to Tell Wild Animals by Caroline Wells, a poem in class 10th. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. How to Tell Wild Animals. Students, this is a humorous poem. ये काफ़ी मजाकिया कविता है. And in this poem, you will get to know how to tell means how to identify wild animals or wild beast. हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानें, कैरोलिन वेल्स हमें इस पोएम में बता रही हैं. So this is a humorous poem suggests some dangerous ways to identify or to tell wild animals. Now let us have recitation of this poem first. How to tell wild animals. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you and you are dying, you will know it is the Asian lion. Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you, with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth a beast you view, whose hide with post is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. If, when you are walking round your yard, you will meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess, he will give you just one more caress. Thou, to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may. Tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. So this is a very beautiful poem by Caroline Wells, How to Tell Wild Animals. So children, let us discuss the first stanza. If you ever should go by chance to jungles in the east, अगर आप कभी by chance ईस्ट के यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज़ के पूर्वी देशों के जंगलों में जाओगे, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस और तुम उनके अंदर अगर आगे बढ़ोगे, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अ लार्ज मीन्स बहुत बड़ा, टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो भूरे पीले रंग का, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. बीस्ट बच्चों एनिमल के लिए ही एक सिनोनिम है, तो बीस्ट और एनिमल मीन्स जानवर. इफ़ ही रोर्स अगर वो तुम्हारी ओर गुर्राता है, एट यू आर एज यू आर डाइन और तुम्हें लगता है तुम मरने वाले हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो पहचान जाओ बच्चों ये जानवर और कोई नहीं बल्कि एशियन लायन ही है. तुम देख सकते हो काफ़ी लार्ज बीस्ट है, काफ़ी लार्ज जानवर है. Picture is on your screen and it is brownish yellow in color and it can be found in eastern countries, in the jungle of eastern countries. Now let us move to the second stanza. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you, or if sometime when roaming round, घूमते हुए, roaming means moving around, a noble means graceful, बहुत ही सुंदर, wild beast जंगली जानवर, greets you आपको ग्रीट करता है, आपको मिलता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड और उसके ऊपर येलो ग्राउंड, येलो कलर का है वो बच्चों और उसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियाँ बनी हुई है. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, नोटिस करो अगर वो तुम्हें खा लेगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, डिसर्न आइडेंटिफाई. तो तुम उसको सिंपल रूल है आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का कि ये है बंगाल टाइगर. तो बंगाल टाइगर की क्या पहचान है बच्चों, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट, इट इज़ येलो कलर and it has black stripes on it and he will surely eat you. Now let us move to the third one. Third stanza. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered. If strolling forth,
स्ट्रोलिंग मीन्स वॉकिंग लेजरली, आराम से अगर तुम आगे बढ़ते जाओगे. अ बीस्ट मीन्स एनिमल, तुम देखते हो. होज हाइड, हाइड मीन्स स्किन, स्किन उसकी जो स्किन है. विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, वो स्पॉट्स उसके ऊपर धब्बे, स्पॉट्स बने हुए हैं. तुम पिक्चर में भी देख सकते हो, काले काले धब्बे बने हुए हैं. एज सून ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, और वो तुम्हारे ऊपर लेप्ट करेगा, तुम्हारे ऊपर जंप करेगा. लेप्ट मीन्स LEAPT, लेप्ट. यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और जान जाओ अगर वो तुम्हारे ऊपर जंप कर रहा है तो वो है लेपर्ड, तेंदुआ. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और अगर तुम चिल्लाओगे दर्द के मारे वो तुम्हारे ऊपर दोबारा लीप करेगा. ही विल स्प्रिंग ऑन यू अगेन एंड अगेन, ही विल जंप ऑन यू अगेन एंड अगेन. सो इन थर्ड स्टेंजा वी हैव डिस्कस्ड leopard. It has so many spots on his body. Next is, if when you are walking round your yard you will meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. अगर बच्चों आप घूम रहे हैं अपने यार्ड, बगीचे के अंदर, you will meet a creature there, वहाँ पर आपको एक एनिमल मिलेगा, एक क्रीचर, एक प्राणी मिलेगा. who hugs you very very hard, जो तुम्हें बहुत तेज गले लगा लेगा. hugs means embraces, गले लगाना. be sure it is a bear, और अगर वो तुम्हें गले लगा ले तो you have to be sure that it is a bear, ये एक भालू है. if you have any doubts I guess he will give you just one more caress, और अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है, कोई शक है, तो वो तुम्हें दोबारा caress, caress means a gentle and loving touch, फिर से तुम्हें gently, lovingly touch करेगा, means गले लगाएगा. Next stanza. Thou to distinguish beasts of prey, a novice might known plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyena come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. Thou to distinguish, distinguish means अलग अलग करना. beasts of prey, बच्चों beasts of prey क्या होते हैं? animals that kill another animal for food, शिकार करने वाले जानवर जो और जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं. और इस स्टेंजा में दो एनिमल्स को डिस्कस कर रही है पोइट, एक तो है क्रोकोडाइल और एक है हाइना. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइना की. हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, हाइना जो होती है बच्चों वो आती है मैरी. यहाँ पर मैरी की स्पेलिंग को ध्यान दें, MERRY, मैरी मीन्स हैप्पी. शी कम्स विथ हैप्पी स्माइल्स, उसके चेहरे पर हमेशा खुशी होती है, हंसी होती है. बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी ना हो और वो रो रहे हो तो वो होंगे क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ. अ नोवाइस माइट नोन प्लस, नोवाइस मीन्स समवन न्यू टू जॉब, एक नए आदमी को नॉन प्लस पजल नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. बिकॉज हाइना कम्स विद मैरी स्माइल्स, हाइना के चेहरे पर तो हमेशा खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है. एंड इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और मगरमच्छ के आंसू, तुमने हिंदी में भी कहावत सुनी होगी, तो अगर उनके चेहरे पर आंसू हैं तो वो हैं क्रोकोडाइल. विद दिस वी आर मूविंग टू आवर लास्ट स्टेंजा. The new chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. The true chameleon. अब बच्चों chameleon क्या होती है? गिरगिट. is small, काफ़ी छोटी होती है, तुम पिक्चर में भी देख सकते हो. A lizard sort of thing, एक तरह से छिपकली होती है, छिपकली की तरह ही होती है. He hasn't any ears at all, बच्चों उसके कोई भी ears, कान नहीं होते. And not a single wing, और ना ही उसके कोई wings, पंख होते हैं. If there is nothing on the tree, और तुम्हें पता ही है बच्चों chameleon can change its color, जहाँ पर वो हो उसी जगह का रंग वो ले लेती है, वैसा ही रंग अपना चेंज कर लेती है. तो अगर तुम किसी ट्री को देख रहे हो और तुम्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सो इट्स अ chameleon you see, तो तुम समझ जाओ तुम देख रहे हो chameleon को, गिरगिट को. क्यों? कुछ भी नहीं देख रहे हो और गिरगिट को देख रहे हो मीन्स उसने अपना कलर पेड़ के जैसा ही यानी कि ब्राउन कलर का बना लिया है ताकि तुम उसे देख ही ना पाओ, वो तुम्हारी पहुंच में आ ही ना पाए. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड poem How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. Hope you like it and hope you have understood clearly what I am trying to convey to you. Take care all of you. See you later with next video.